Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9. The chapter which we are related with is consignment account. As you can see that this question is just like a practicing question. There is nothing new in it. You can see the requirement. Show ledger accounts in the books of Mr. M. And we are starting this question with Mr. M. So it means we need to make only consignor's book and some ledgers we will be making in consignment account. So this was a brief introduction about the question and we are ready to start it. Mr. M in Sialkot consigned. So first of all we have got the name of consignor. The person is M. Capital letter बना देते हैं. And the person to whom goods are consigned Mr. R. तो आपको ये भी पता चल गया कि R is your consignee. तो हम यहाँ पर उसे मेंशन कर देते हैं consignee and the person is R. अच्छा, please note it down. Show ledger accounts. It means we are going to make consignment and consignee both accounts. चाहे उसने ज्यादा सारे accounts कहे हैं, but we are going to make only 2 accounts. Mr. M in Sialkot consigned. पहली एंट्री हमें मिल गई है and that is for goods sent. और हम क्या एंट्री करते हैं? Consignment to goods sent on consignment. नहीं जी, how much? 200 cases and 600 each. So we have got number of cases 200. अच्छा, मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी, आप चाहें तो यहाँ सिर्फ W1 लिख दें और पेज के एंड पे आप वर्किंग कर लें. So that would be far better. 200 are cases and price of each case is 600. इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं. Number of cases multiply by per case. So this way we have got price of goods sent, जिसको इनवाइस प्राइस भी बोलते हैं. नहीं जी, गुड्स सेंट हो गई. नेक्स्ट चलते हैं. 600 पर केस, रुपीज 120,000 पेइंग. हाँ, वो एक ही बात होगी. यानी कि वी हैव कैलकुलेटेड 120,000 थ्रू 200 केसेस एंड 600. तो उसने अलग से खुद भी कैलकुलेट करके दे दिया, मगर हमने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके पहले ही कर लिया था. पेइंग. अब हु इज पेइंग? सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर एम, सो इट्स अ सेंटेंस इन कॉन्टिन्यूटी. वो ही सेंटेंस पीछे से चल रहा है, तो मिस्टर एम कंसाइनर है. इट मींस सेकेंड एंट्री वी हैव गॉट एक्सपेंसेस ऑफ consignor. And how much expenses we have got? Consignment to cash. And now how much expense? 10,000. एक ही तरह का एक्सपेंस है, जमा माइनस करने की जरूरत नहीं है. 10,000 ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. एंड ड्रॉज अ बिल. बिल आपको मैंने पहले भी बताया कि एडवांस की एंट्री होती है. बिल ड्रॉन एज सिक्योरिटी भी कह सकते हैं आप, और एज एडवांस कह सकते हैं. अब इट इज बिल रिसीवेबल फॉर कंसाइनर, so it would be asset would be written on debit side. So what you will do? Bills receivable, और टू आपने कंसाइन नहीं करना है, और कंसाइनी का नाम आर है, वो साथ में मेंशन कर लें. अच्छा, ये आर जो है ना वो सिंबॉलिकली जा रहा है, तो एक्सेल इसको क्लिक करता है रजिस्टर ट्रेडमार्क के लिए. तो कोई बात नहीं, आप बस समझ लें कंसाइनी आर है. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल? 60,000. Just put 60,000 on both sides. So let's proceed next. 150 cases of this consignment was sold. Sale की entry मिल गई. So just write down sales
ग्रॉस सेल भी कह सकते हैं, सेल प्रोसीड भी कह सकते हैं। इसके लिए कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। और बेची कितनी चीजें हैं, 150 और 140,000। उसने टोटल प्राइस ही आपको बता दी, नो नीड टू कैलकुलेट, जस्ट राइट डाउन 140,000 on both sides. And expenses, look, it's just a common sense. We are talking about Mr. R and we have got the expenses. It means R consignee. So these would be expenses of consignee. क्या एंट्री करेंगे? First you will put consignment to consignee and the person is R. So consignee's expenses are 12,000. Just put 12,000 on both sides. Then Mr. R is entitled to a commission of 6% on sales. Commission की entry आ गई. So we are going to put commission of consignee. So what you will do? यहीं से उठा लेते हैं. Consignment to consignee. कमीशन को कैलकुलेट करना होगा, देखते हैं. हाँ, 6% on sales. So over here सेल अमाउंट आपने पहले लिखी हुई है 140,000 और मल्टीप्लाई कितना था, 6%. दोबारा देखना, यस इट्स 6%. 6 डिवाइडेड बाय 100 कर दें. सो यू विल गेट द कमीशन 140,000 मल्टीप्लाई बाय 6%. कमीशन भी हमारी कैलकुलेट हो गई है. आपने देखा नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी done in several times in previous question. Are remitted net amount. So for that purpose आपको कंसाइनिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, शो लेजर अकाउंट. अब हमारा एक काम रह गया, वी हैव टू कैलकुलेट आवर स्टॉक. तो यहां हम कैलकुलेट करते थे स्टॉक, आज दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं. स्टॉक के लिए सबसे पहले इनवॉइस ऑफ अनसोल्ड, और वो कैसे निकालेंगे, अनसोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट इनवॉइस, या इनवॉइस पर यूनिट एक ही बात है. और फिर आपने इसमें ऐड करना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. अच्छा, ये प्रोपोर्शनेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम फिर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. यहां पर ऐड का वर्ड लिख देते हैं, ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. और वो कैसे होगा, जितने भी एक्सपेंसेस हों जस्ट मल्टीप्लाई विद अनसोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल, एंड देन अगेन ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और उसमें भी यही करना है, यहीं से उठा लेते हैं. लेकिन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी के अंदर यू विल बी टेकिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली. निशानी के तौर पे हमने साथ में लिख दिया. अब आप चेक करें कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वर 200 and you have sold 150. It means 50 units are still unsold. So put 50 over here. और अब इसको मल्टीप्लाई करना है एक यूनिट की इनवॉइस प्राइस पे. वो हमें शुरू में पता चल गया था, इनवॉइस प्राइस वाज 600. So we are going to put 600 over here. Invoice of unsold. Let's complete the calculation. Number of unit unsold 50.
and 600 is invoice price per unit. अब आपने expenses of consignor देखना है, ये entry देखें. So we have 10,000. Amount of expenses 10,000 multiplied by unsold हो गए 50 divided by 200 total number of units. दोबारा दिखा दूं आपको. Look, these were 200 cases and 150 cases were sold. So unsold रह गए 50 और 200 were total. अब कंसाइनी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कंसाइनी के एक्सपेंसेस एक्सप्रेस्ड नहीं है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, बट नेम हैज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर वेदर इट इज रेंट, unloading charges, bill paid, electricity bill. So if name is not mentioned, you are not going to pursue consignee's expenses. Just write down 0 over here. And expenses of consignor total were 10,000. Multiply by 50 divided by 200 total number of units. Over here you will add all three amounts. So this is our stock amount. इसकी एंट्री करने की जरूरत है. So we are going to make journal entry for stock और एंट्री हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू consignment and the amount we have just calculated. This is 32,500. Alright guys, we have completed calculation of stock as well. There is nothing left. It means we are ready to make our calculation. ये profit के लिए जगह छोड़ देते हैं. And here cost of consignment और इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, goods sent on consignment to consignment. Alright guys, so आपको ये भी पता है कि लास्ट एंट्री की अमाउंट वही होती है जो स्टार्ट की एंट्री की अमाउंट होती है, and that is 1,20,000. And same you will put over here. So now we are going to start making consignment account. तो सबसे पहले consignment देखा 120,000 is written on debit side और इसके opposite side पे to goods sent लिखा हुआ था, उसको यहाँ पोस्ट कर देते हैं और साथ में एंट्री कंप्लीट फर्स्ट. फिर आप देखें consignment again present on debit side and that is 10,000 और opposite side पे to cash लिखा हुआ है. Then you can see consignment is not present, leave it. Consignment in next entry, yes it is present on credit side और ये आपको नजर आ रहा है 140,000 और opposite side पे by consignee है, उसी को ही पुट कर देते हैं. Next entry consignment is present on debit side 12,000 और opposite side पे consignee लिखा हुआ है. Next entry consignment is present on debit side 8,400. So just put 8,400 over here और narration is same. 8,400 completed. अब चलते हैं next. Stock is present on credit side. So here how much? 32,500 और इसके साथ लिखा हुआ है by stock on consignment. नहीं जी, सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई. अब जल्दी से हम दोनों साइड का सम लेंगे. सम ऑफ डेबिट साइड ओके, नाउ सम ऑफ क्रेडिट साइड ओके. तो साइड इधर आई. अब यहाँ पर चेक करते हैं द डिफरेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल अमाउंट. स्मॉलर सम वाज 150400. So we have got
22,100. Look at here, the answer is 22,100. ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट की भी एंट्री कर दें, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और चूंकि डेबिट साइड यूज होगी कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और कितना प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 22,100. सेम यू विल बी पोस्टिंग ओवर हियर। अच्छा जी, और इसको चूंकि ये बैलेंस निकाला है, बैलेंस नहीं लिखना, उसकी जगह टू प्रॉफिट ही लिखना है। So guys, in this way our ledger for consignment is also completed. अब consigning में you already have an idea 4 entries: sale, expenses of consignee, commission और advance। वो हमें पहले ही पता है, लेकिन हम यहीं से ही चेक करते करते नीचे जाते हैं। First entry, consignee is not present. Second, not present. Third, yes it is present. Advance की entry है, credit side पे है, और 60,000 आपने यहाँ पे लिखना है, और bills रिसीवेबल है, यहाँ कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, कंसाइनी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड 140,000, और टू कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट ओवर हियर, वही रेफरेंस के लिए आप यहाँ लिखेंगे। सो सेल वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब आप आगे देखें कहाँ कंसाइनी अब मौजूद है। 140,000 was present over here. Consignee, yes, look at here, consignee is present on credit side. How much amount? That is 12,000. और opposite side पे क्या लिखा हुआ है, consignee is present, और opposite side पर consignment है, वही आप यहाँ लिखेंगे with an additional word of buy. So 12,000, okay. Next देखिए, consignee again present on credit side. So over here you will put 8400. आप देख लीजिएगा, वही 4 एंट्रीज हैं जिनको हम रोज डिस्कस करते हैं। ऑपोजिट साइड पे कंसाइनमेंट लिखा हुआ है, जस्ट पुट इट डाउन। अब नेक्स्ट, कंसाइनी इज नॉट प्रेजेंट, लीव इट आउट। तो आपने देखा 4 वही एंट्रीज हैं: सेल, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी एंड एडवांस। अब इसका फाइनल टच लेते हैं। फर्स्ट यू विल टेक सम ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ पे भी आपने सम कर दिया। देन यू विल बी राइटिंग बैलेंस, और बैलेंस आपको पता है कि ये कैश ही होता है, यानी कि बाकी बैलेंस आपने एडजस्ट कर लिया। कितनी अमाउंट आएगी, आपने लार्जर सम दैट वाज 140,000 और स्मॉलर सम वाज 80,400। दोबारा देखिए, लार्जर सम 140,000 माइनस 80,400 फॉर बैलेंस, सो इट वाज रिमेनिंग अमाउंट। अब ये पढ़ें जरा दोबारा से। remitted to Mr. Ahmed the net amount held for his account by means of a sight draft. साइट ड्राफ्ट का मतलब क्या, एक और ड्राफ्ट उसको दे दिया। देखिए, मिस्टर आर रिमिटेड टू मिस्टर एम द नेट अमाउंट, जितनी भी अब बकाया रकम थी वो हमें समझ में आ गया था। हमने अकाउंट उसका क्रिएट किया जिसमें एडवांस वगैरह सारा लिखा हुआ था, और पता चला रिमेनिंग अमाउंट इज 59600। तो अब ये लास्ट एंट्री के नीचे आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। नेट अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट रिमिटेड, और उसके लिए दोबारा वही पैसे आपके पास आएंगे, किससे, कंसाइनी के पास से। एंड हाउ मच अमाउंट, ये जो बैलेंस आपका बचा हुआ है वो आप उससे मंगवा लेंगे 59600। Alright guys, in this way main target was to get our answer 22,100 and we have got the same 22,100 in the book. In this way our question has been completed. I'm requesting you to please, humble request is, just write down by yourself.
अच्छी तरह से कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा, and I will surely be trying to answer your question quickly. Thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.